सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम आपको एक केमिस्ट्री में इस केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? वी विल टेस्ट व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉइल. इज द सॉइल एसिडिक और द सॉइल बेसिक? ओके, सो you have we will check this one whether the soil is acidic or basic. So students, I have taken these test tube. This is the 4 test tube I have taken. कितनी टेस्ट ट्यूब है? 4 टेस्ट ट्यूब है. नाउ इन एवरी टेस्ट ट्यूब आई विल क्लोजर शो. ओके, सो इन एवरी टेस्ट ट्यूब आई विल पुट सम अमाउंट ऑफ सॉइल. सभी के अंदर क्या बेटा? थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमने क्या डाली है? सॉइल. This is one soil. Another type, we have collected different soil from the different villages. Okay, this is second type of soil. Okay, this is third type of soil which I have collected. Okay, and this is the one soil which I have collected from the other village. So one by one I am putting this soil in the different test tubes. So we have collected now the different soil in the different test tubes. Now students, here we have collected 4 type of test tubes. These are 4 type of test tube. Different type of test tubes are there, and in each test tube what is there? Soil. I have put the soil in each test tube. There are 4 test tube and soil. Now I will put some water in each test tube. I will put some water in each test tube. So I will put some water in this test tube. Then again in this test tube also some water. Small amount of water I will put in this one also, and in last test tube also. Now I have filled the water in all the test tube, and we will wait that it will mix. Okay, now this water will be mixed in the test tube. In this test tube the soil and water will be mixed. So we will mix it. Okay students, now this one also. Now this water, we have mixed soil and water together. We have mixed it. Now this is beta litmus paper. इसे हम क्या बोलते हैं? This is called litmus paper. This litmus paper is of blue color, so it is called blue litmus paper. It is called blue litmus paper. See, if I will put this. Okay, now I have taken this one. ये मैंने एक लिटमस पेपर ले लिया बेटा. This is one small piece of blue litmus paper. Now if I will dip in this one, we will check what will be the color of this one. Is the color change or remain blue? You have seen it is blue only, no change in this color. Now from this side I will again this one in the again another type of soil. Okay, now again I will dip in this one and check whether this soil, what will be the color change. So you will see here again it is of blue color. This color is again blue, means there is no change in the color of the litmus paper. Or I will keep this litmus paper here also. So after let it will be dry and we will know what will be the color. Let it will be wait. I will keep here only. Okay, next I will take one more litmus paper. ठीक है, one more paper I will take. Now again I will dip in the third test tube. In this third test tube and check it. Okay, now again in the fourth test tube also I will dip this one. Okay, in the fourth test tube also beta I will dip this litmus paper. So this is the solution of which solution beta? This is soil and water. So
इफ आई विल डिप, यू कैन पुट सम ड्रॉप ऑल्सो, इसके आप यहाँ से आप फ्यू ड्रॉप्स लेके आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली डिप इन दिस वन, दिस मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर. नाउ लेट इट विल बी ड्राई. इसको सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं. नाउ अगेन वी विल चेक इट विद द रेड लिटमस पेपर. दिस इज रेड लिटमस पेपर. ओके, वी विल वेट हियर. व्हाट विल बी द, इज देयर एनी चेंज और नॉट? हम वेट करते हैं, बट अगेन वी विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर. इट मीन्स ब्लू कलर में कोई चेंज नहीं आया. इट मीन्स वो बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है. That I will check it with the red litmus paper. This is called, students, here it is written also red litmus paper. Okay, so that is red. तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्मॉल पीस लिया है रेड लिटमस पेपर से. यहाँ से इसमें से क्या है स्टूडेंट्स, आई विल टेक वन पेपर. ओके, आई विल टेक हियर वन पेपर ऑफ दिस रेड लिटमस पेपर. एक पेपर लिया, अब इसमें मैंने डिप किया अगेन. This is red litmus paper. Now I will dip in this test tube first. Okay, so you will see here what will be the change in the color. So after dipping in this one, हिलना नहीं है. Okay, we will keep here for dry. Next, one more piece I will take, and we will dip in one by one. Okay students, so I will dip in the next test tube. इस टेस्ट ट्यूब में मैं इसको डिप कर रही हूँ. ओके, दिस सेकेंड पेपर आई हैव टेकन, एंड अगेन इट विल बी डिप सोक्ड इन द वाटर. इसमें मैंने डिप कर दिया है. ओके, नो चेंज हेयर. एंड देन same in the third and in the fourth also. I will dip from the other side. Now you will see students, यहाँ पे हमने 4 टेस्ट ट्यूब से हमने ये डिप करके रख दिए. ओके, सो यहाँ पे इसमें हल्का सा ब्लू नजर आ रहा है. यहाँ पे ब्लू कलर की हो रही है यहाँ. ओके, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का आ रहा है. सेम यहाँ पर भी ब्लू कलर का ही आ रहा है. ये देखो यहाँ से यहाँ पर ये रेड कलर, बट इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. नो चेंज. ब्लू लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब ये सॉइल क्या है, न्यूट्रल है. ना ही ये सॉइल एसिडिक है, ना ही ये सॉइल बेसिक है. ये सॉइल कैसी है, सभी ये जितने भी सॉइल हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, ऑल दिस सॉइल सैंपल आर न्यूट्रल. मतलब जिसकी पीएच क्या होती है, 7. ओके, एक और है मेरे पास. लेट आई विल चेक इट फ्रॉम द, दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से हम चेक करते हैं कि इसका कलर क्या आता है. ओके, क्योंकि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से हमने चेक किया, देन उस पर क्या आया बेटा, नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, रेड लिटमस नो चेंज रेड. इट मीन्स दैट इज न्यूट्रल. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. ओके, इस पेपर पे स्टूडेंट ओके, इसके ऊपर क्या स्टूडेंट रीडिंग लिख रखी है 1 से लेकर 14 तक. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखी है, इसमें रीडिंग लिख रखी है 1 से 14. अब इसका वन स्मॉल पीस आई विल टेक दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और इसके एक पीस से मैं इसको चेक करती हूँ. लेट आई विल चेक व्हाट विल बी द चेंज इन द कलर. ओके, इसको डिप कर देते हैं. यहाँ पे हाफ इस साइड से डिप किया स्टूडेंट मैंने इसको, और हाफ को इस ओनली 2 से ही कलेक्ट करके देख लेते हैं हम व्हाट विल बी द चेंज इन द टू सॉइल. ओके, और लेट इट विल बी ड्राई. फिर इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे हम थोड़ी देर के लिए, एंड देन वी विल सी दिस कलर. व्हाट विल, इसका कलर इसके साथ किसके साथ मैच होगा. ओके,
जिस चीज के साथ मैच होगा यहाँ पे, जिसके साथ मैच होगा इसका कलर, ठीक है, सो उसी का वही उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पीएच वैल्यू आ जाएगी उसकी सॉइल की। ओके, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सूखने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका कलर क्या है। वही सेम, ये भी मैच हो रहा है मोस्टली 7 के साथ ही। ये भी कलर इसका जो मैच हो रहा है, धीरे से अगर आप देखोगे तो ये 7 के साथ ही मैच हो रहा है हल्का सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ड्राई होता जा रहा था, हमें पता चल रहा है 7 के साथ ही ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मैच कर रहा है इस पीएच वैल्यू 7 के साथ। थोड़ा और सूखने से और पता चल जाएगा हमें। ओके, तब ये सॉइल कैसी है, न्यूट्रल है, ना ही ये एसिडिक है ना ही ये सॉइल बेसिक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसके साथ देखोगे, यहाँ पे रीडिंग है नियर अबाउट 7C, ठीक है, ये अभी तक सूखा नहीं है बेटा, थोड़ी देर में गीला है, अभी ये ड्राई हो जाएगा तब आप देखोगे इसकी रीडिंग बिल्कुल यहाँ पे 7 से मैच करेगी। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल, ये सॉइल कैसी है, न्यूट्रल है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लर्न किया है कि सॉइल कैसे चेक करते हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। we will check with the help of litmus paper also, or you can check with the help of universal indicator paper. So clear है स्टूडेंट्स सभी को, इस तरीके से हम सॉइल को चेक करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।